Shantanu, are you here? Yes, sir, very much. Okay, hello, very nice, good and good. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together and welcome Shantanu Rane? Welcome, Shantanu. Welcome, Shantanu ji. Welcome, Shantanu. Welcome. Thank you. Welcome, Shantanu. Welcome, Shantanu ji. Welcome. Welcome, Thank you Shantanu so ji. much. Very, Welcome, sir. What a very very nice. So everybody, please switch. Welcome. Yeah, everybody, please switch on your cameras. And this is going to be really interesting and amazing what Shantanu has to share with us. So Shantanu, why don't you tell us, what is your business? What do you do? Which city do you belong to? And how did your story with BCI start? What was life like before? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा शांतनु, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए. एक सेकंड मैं अनम्यूट करता हूं, रुक जाओ. आप, ओ गॉड, आपको कोहोस्ट में नहीं बना है क्या? जस्ट 1 सेकंड. सॉरी Yeah. सॉरी, माय मिस्टेक. एक सेकंड. Now I think I'm unmute now. Yes, you are unmute. Fantastic. So thank you for such a warm welcome, everybody. So let me introduce myself. My name is Shantanu Rane. I basically own two verticals. One is real estate and second is hospitality. I belong to city of Mumbai, and the real estate entire vertical is right now focused only on Mumbai, whereas hospitality is totally focused on Goa. So with all the experience I used to have when I used to sit for sir's class, real estate or hospitality के लोगों के कान खड़े हुए होंगे अभी. So everybody must be super excited now कि काफी focused चीजें उनको मिलने वाली है. But हिंदी, थोड़ा हिंदी चलेगा. Okay. Very nice. So मेरा नाम शांतनु राणे है. We got all of that, yeah. So it is basically मैं आपसे बात करना शुरू करने से पहले सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि बीएमपी के पहले आपका लाइफ कैसे था. सो सर, if you allow me, I would like to show everybody a small video. Yes. I think everybody will relate कि बीएमपी के पहले मेरा तो लाइफ ऐसे था, बट करंटली आज सारे जो यहाँ पे बैठे हैं उनका एग्जैक्टली लाइफ ऐसा है. So can I request my EA to share the video, sir? Yes, please tell her. The stage is all yours. Do whatever you want. Yeah, Becky, can you please share the video? Guys, would you like to see a video? Yes. Everybody. Yeah. इसका साउंड नहीं आ रहा. Becky, sound please. उसका ना साउंड का एक सेटिंग होता है. यू हैव टू गो बैक, स्टॉप द वीडियो स्टॉप करो जरा. हाँ, इसका ना साउंड का एक सेटिंग होता है, जहां शेयर बटन है ना, वहीं पर साउंड का सेटिंग होता है. शेयर, ये एक नीचे यहाँ पर, ये यहाँ पर जरा साउंड बढ़ा के देखो, जहां नीचे साउंड बार है वहां साउंड ठीक है. हाँ, इसको बढ़ा दो, फुल कर दो. 1 मिनट चला के देखो. Racing like he's one of their own. The Marvis Stickle brother. He'll be forgotten in a month. I'm sure everybody has seen this movie. Much sooner than that. It's been rain. वैसे ना क्लैपिंग नहीं आ रहा शांतनु इसमें. the sound is not coming on. I know. So let the just visual happen. Let's play this. Yeah. We who are about to die, salute you.
Fantastic. Thank you, Venki. This is good enough. I think everybody must have got it by now. So, sir, I think आप सबने जो ये वीडियो अभी देखा, can you relate this video to how you look like when you go to office? थोड़ा बहुत यस, थोड़ा बहुत नो। So, सबको क्या? बीएमपी से पहले एग्जैक्टली मेरा ये होता था। मैं जैसे एक ग्लैडिएटर एक रिंग में जा रहा है, वैसे मैं भी ऑफिस जाता था। एंड ऑफिस में जाके जब मैं मेरी कुर्सी पे बैठता था, तो कौन से एरिया से कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है वो मुझे बिल्कुल पता नहीं होता था। एंड सडनली हर एक जन अपने अपने प्रॉब्लम लेके मेरे पास आता था। एंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे टिल द एंड ऑफ द डे मैं ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग जाता था। सो बेसिकली बीएमपी के पहले मेरा लाइफ एक्चुअली एक ग्लैडिएटर की तरह था, जहाँ पे मैं जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में इतना ज्यादा बिजी होता था कि सोच या ओरिएंटेशन बिल्कुल नहीं था। एंड दैट इज समथिंग विच वाज रियली एग्जॉस्टिंग मी अ लॉट। इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, मैंने रोजवर्ल्ड की जो शुरुआत थी वो 2014 में की। एंड 2014 से लेकर 2022 तक टिल आई एक्चुअली जॉइंड बीएमपी, मैं एक ही काम कर रहा था मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो मतलब ये झाड़ू पोछे का काम। एग्जैक्टली व्हाट दिस ग्लैडिएटर वाज डूइंग, कि उसको रिंग में डाल दिया और वो आके फायर एक्सटिंग्विशिंग का काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब मैं मेरा ग्राफ पीछे जाके देखता हूँ, सो 2014 से लेकर 22 दो आई वॉज वर्किंग सो मच, मैं इतना काम कर रहा था, इतने सारे मतलब मीटिंग्स हो रही थी, रिस्क ले रहा था, लोन्स ले रहा था, स्टाफ को सबको संभाल रहा था। इन स्पाइट ऑफ दैट, if I see my financial growth from 2014 to 22, it hardly happened, and ये चीज इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही थी। पर द बिगर प्रॉब्लम वाज कि इनफैक्ट टिल 2022 मैंने ये चीज रियलाइज ही नहीं की कि मेरी ग्रोथ नहीं हुई। पर काम तो बहुत हो रहा था। इनफैक्ट एज ईयर ऑन ईयर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे जैसे मैं और बिजी हो रहा हूँ, काम बढ़ रहा है, काम तो बढ़ रहा था, काम का प्रेशर बढ़ रहा था, लोन्स बढ़ रहे थे, बट प्रोग्रेस नहीं बढ़ रहा था सर। एंड ये सारी चीजें, इनफैक्ट इट इज सो इम्पॉसिबल फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस अनलेस एंड अंटिल ही गेट्स सम टाइम आउट ऑफ दिस झाड़ू पोछा टू थिंक कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इनफैक्ट मैंने ये रियलाइज किया सर कि 2014 से लेकर 2022 तक मेरा जो सीनियर्स थे मेरे साथ, मतलब जो द सीनियर पीपल हु हैड जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तनख्वाह बढ़ी, उनके लाइफ में काफी प्रोग्रेसेस हुए। एंड आई यूज्ड टू एंश्योर कि भाई अपने जो टॉप लोग हैं या बॉटम लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको रेगुलर सैलरी हाइक्स होने चाहिए, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। बट पर्सनली इफ यू सी, जब मैंने मेरा ग्राफ देखा तो इट वाज एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी सर, पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही थी। And does everybody here right now correlate with what I am talking? आपको ये फीलिंग आ रहा है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बड़ा कर रहे हो, बट जब आपकी खुद की बात आती है तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि हम लोग हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वो हम लोग बाजू में रखते हैं और कंपनी के इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं। जो सारा का सारा हम प्रॉफिट्स कमाते हैं वो इमीडिएटली हम लाते हैं और अपने बिजनेस में डाल देते हैं। एक आध साल बिजनेस अच्छा हुआ तो इंक्रीमेंट्स देते हैं, बोनसेस देते हैं, बट देन इवेंचुअली इफ यू सी सर कि ये सब हम करते हैं इसलिए कि हमारी पर्सनल ग्रोथ भी हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी होती नहीं। दूसरा, हम कभी ट्रैक नहीं करते। एंड ओनली एंड ओनली रीजन ये होता है, जो मैंने रियलाइज किया, वाज ओनली एंड ओनली आफ्टर आई जॉइंड बीसीआई में। सर विच वीक आर दे डूइंग राइट नाउ? दे आर एट वीक 7। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो इनका एफएमएस में कुछ नहीं लॉन्च हुआ है। कुछ नहीं लॉन्च हुआ है, करेक्ट। बट आई एम श्योर सर आपने फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए होंगे उनको। हाँ, वो कर दिए। यस, सो गाइज, ये जो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स जब मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ, तब मुझे समझ में आया, स्पेशली आफ्टर आई स्टार्टेड गेटिंग अप एट 4 AM, कि इट इज हाई टाइम नाउ ये झाड़ू पोछा से अभी निकलना है एंड एक्चुअली
as far as my personal growth is concerned and financial growth of the company is concerned, I have to not thinking on it. And वो जो जर्नी हमारी शुरू हुई, वो obviously we also started with week 6 and week 7, and slowly steadily let me tell all of you कि ये this becomes like a vice, ये आपकी आदत बनती है. कुछ लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ आदतें होती है, बट एक बार आप ये BCI के कॉन्सेप्ट में आ जाते हो, दिस बिकम्स लाइक अ वाइस, बिकॉज एवरी वीक एवरी वेडनेसडे हम लोग को स्लोली सर ने एक एक करके ऐसे एस्केलेट किया कि वी वेर शॉक्ड एवरी वीक कि भाई ये इतनी सिंपल चीज हमने इतने सालों में कैसे आइडेंटिफाई नहीं की. एक्चुअली इफ यू सी सर के जो साइंसेस है वो इतने सिंपल है बट इतने ज्यादा इफेक्टिव है, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हम इतने तोप है, इतने बिजनेसमैन है, बट हम हमारी रेगुलर लाइफ में ये इस बारे में कभी सोचते ही नहीं. सो एज वीक ऑन वीक सर हमको इस स्पेस में लेके गए. आई स्लोली स्टार्टेड अनवाइंडिंग माई बिजनेस. अनवाइंडिंग ऑल्सो वॉज क्वाइट अ चैलेंज बिकॉज इतना सारा, मतलब सर के लैंग्वेज में इतने सारे रायते फैले हुए थे कि उन रायतों को एक पॉइंट पे लाना, उनको स्ट्रीमलाइन करना वॉज इटसेल्फ अ टास्क. बट बिलीव मी, एवरीबडी हु इज राइट नाउ लिसनिंग टू मी, आप एक चीज मेरे से दावे से सुन लीजिए कि जो सर आपको बोल रहे हैं, प्लीज सर का सबसे बड़ा फॉर्मूला यूज करो, वो है DML. दिमाग मत लगाओ. डोंट चैलेंज हिज एनीथिंग व्हिच ही सेज, बिकॉज इनिशियली हमको भी थोड़ा लगता था कि कुछ सर के साइंस ट्वीक करके हम हमारे साइंसेस लगाएंगे. बट अगर सर बोल रहे हैं कि बुधवार को आपको शंकर जी के दर्शन करने हैं, तो बुधवार को ही जाओ और बुधवार को शंकर जी के ही दर्शन करो. बिकॉज आई थिंक आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस ऑफ 9 months विथ हिम, आई रियलाइज्ड कि सर कुछ चीजें जो इनिशियली बोलते थे वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और फोकस्ड होती थी कि हम लोग वो अभी गेज कर पा रहे हैं. ओके, सो द ओनली रीजन आई एम शेयरिंग दिस विथ सो मच ऑफ माई हार्ट आउट टू यू इज कि अगर आप डे 1 से ये चीज समझे कि सर का एक जो साइंस है वो इतने सालों के एक्सपीरियंस से आया हुआ है. आई जस्ट टेल यू वन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि सर हमेशा हमें बोलते थे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू शेयरिंग. एंड हमारे क्लास में देयर वाज वन सेक्शन, एंड ऑल्सो कुछ हद तक मेरा भी ये थॉट प्रोसेस था कि मैं सर को हमेशा कभी कभी बीच में बोलता था कि सर आप ये जो पूरी क्लास लेते हो उसमें फर्स्ट सेशन में आप सिर्फ शेयरिंग लेते हो, एंड फिर सेकेंड सेशन में यू टीच अस. व्हाई डोंट यू डू इट द अदर वे अराउंड, सो दैट लोग है वो क्लास से एक बार फर्स्ट हाफ में सीख ले तो शेयरिंग कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, तो वी कैन लीव फॉर आवर रेगुलर वर्क. बट गाइज प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक. वो एक आप ऐसी मिस्टेक करोगे, बिकॉज what I feel personally and everybody feels right now in my batch at least, कि जो शेयरिंग में हमको मिला वो इतना ह्यूज और इतना अबंडेंस मिला, बिकॉज शेयरिंग जो होता था क्लासमेट्स में उसमें हम रिलेट कर पाते थे. सर इफ यू अलाउ मी, कैन आई शेयर वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट व्हिच रियली मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय करंट बिजनेस प्रोफाइल? Yes, please. आपका stage is yours. Just share what was happening, and after that also share what were the challenges you had in real estate. Yes. So just to emphasize on the sharing point which I said, कि हमारी जब शेयरिंग चल रही थी तब सर ने हमें एक बुक पढ़ने को बोली थी और उसके ऊपर फर्स्ट हाफ में शेयरिंग रखा था. बुक का नाम ब्लू ओशन था, एंड हमारी बैचमेट ने एक उसमें बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला कि लॉट ऑफ टाइम्स हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है जो हम हमारे कस्टमर के लिए बनाते हैं उसमें कुछ चीजें जो जरूरी नहीं होती वो भी हम उसके पैकेज में ठोस देते हैं, एंड दैट इवेंचुअली इज अ कॉस्ट विच द कस्टमर डजंट नीड. तो ये जब पॉइंट मैंने मेरी शेयरिंग में सुना तो सडनली मुझे एक चीज समझ में आई कि इन रियल एस्टेट वी मेक प्रोडक्ट्स जिसमें एक फ्लैट की कीमत अराउंड 10 to 12 crore होती है, और उन फ्लैट्स में हम उनको जब वो फ्लैट हैंड ओवर करते हैं तब हम उनको बेसिक टचअप दे के एक फैन देते थे और एक ट्यूबलाइट देते थे. सो वाइल दिस शेयरिंग हैपेंड, मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि 10 करोड़ का जो फ्लैट लेता है वो तो पक्का फैन और ट्यूबलाइट नहीं रखेगा. सो दैट वाज अ कॉस्ट व्हिच वाज अननेसेसरी बीइंग फ्लोन आउट ऑफ द कंपनी, एंड उसमें हम ऐसी कुछ क्लाइंट को चीज दे रहे थे जो वो कभी नहीं यूज करने वाला था. दैट सेम डे आई वेंट बैक टू द ऑफिस
and I give instructions to my cost cutting team कि भाई ये फैन और ट्यूबलाइट ये चीजें अभी हमको डिसकंटिन्यू करनी है. हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है उसमें डिसकंटिन्यू होने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट आता है. तो गाइज यू वोंट बिलीव the total money I saved with that one sharing was 1,93 lakh rupees. The only reason I'm converting this into money is that you have to understand कि sharing is the utmost important thing which you have to listen as sincerely as you listen to sir. Now, as sir said, to be specific with real estate, आप सब जानते हैं मोटा मोटी रियल एस्टेट में the basic challenges जो होते हैं वो होते हैं ऑन टाइम डिलीवरी. एंड जो ऑन टाइम डिलीवरी होती है उसका रिलेशन होता है आपके लाइजनिंग स्ट्रेंथ से, आपके कंस्ट्रक्शन के स्पीड से, एंड आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सेल्स से. सो as far as Roosevelt was concerned, before 2022, we had problems in all these fields, all these departments. Venki, can you just share the slide where I would like to take one department and share कि मुझे BMP से पहले क्या प्रॉब्लम आते थे एंड BMP के बाद सर के साइंसेस के बाद सर के सिस्टम्स के बाद हमने वो प्रॉब्लम्स को कैसे काउंटर किया एंड इवेंचुअली बिकॉज ऑफ दैट काउंटरिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम हमको क्या रिजल्ट्स मिले वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. वेंकी, कैन यू प्लीज शेयर? Guys, interested? Yes, no, what? चलो, फैंटास्टिक. And please understand that this is not only real estate, everybody else also. Yeah, take it as a general thing. I will just try to make it general so that everybody can relate on this. So 2022 में ये BCI का magic, Rahul sir came in my life, and trust me guys, it was a total game changer. So वो game change कैसे हुआ वो मैं एक डिपार्टमेंट को आपको लेके जाऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा ताकि it doesn't go very long. So basically, as all of you know, as I just said, कि रियल एस्टेट में आप देखोगे तो मेन ये हमारे पॉइंट होते हैं. एडमिन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, एक्विजिशन होता है, सेल्स होता है, अप्रूवल होता है और फाइनेंस होता है. Wow, really nice, Shantanu. You really put in some time into this. Thank you so much. Yes. All for the. हमारे भी अलग-अलग challenges होते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं. Guys. होते हैं. हाँ. Yeah. So basically ये सारे मेरे डिपार्टमेंट्स है. So इसमें से ये जो डिपार्टमेंट्स है इनको आप डिपार्टमेंट्स मत देखिए. आप इमेजिन करिए कि 400 मीटर का रिले रेस चल रहा है. 400 मीटर के इस रिले रेस में अगर एक भी कोई डिपार्टमेंट स्लो भागता है तो इवेंचुअली नेक्स्ट डिपार्टमेंट को बैटन लेट मिलता है. एंड इमेजिन ये अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है तो इवेंचुअली आपका प्रोजेक्ट लेट होता है. इसका मतलब आपका रेपुटेशन खराब होता है. इसका मतलब आपको प्रॉफिट्स आपके डिले होते हैं. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी डिड इज कि वी अंडरस्टूड कि आफ्टर वी लर्न सर साइंस, सर ने हमको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि व्हेनेवर यू टैकल अ प्रॉब्लम, आपको आपके सारे प्रॉब्लम आपको आपके एक टू डू लिस्ट में डालने हैं. सो इन द फर्स्ट 5th और 6th वीक ओनली मैंने सर का ये कॉन्सेप्ट लेके मेरी टू डू लिस्ट में हर एक डिपार्टमेंट का एक पूरा टू डू लिस्ट बना दिया. सो जब मैंने एडमिन का टू डू लिस्ट बना दिया, उस टू डू लिस्ट में मैंने 80-20 कर दिया. सर, आर दे अवेयर ऑफ 80-20 कॉन्सेप्ट? हाँ. फैंटास्टिक. सो मैंने जब मेरे एडमिन सेक्शन में 80-20 किया तो मुझे क्या समझ में आया? वेंकी, कैन यू प्लीज शो द स्लाइड ऑफ एडमिन? फैंटास्टिक. सो मैं सिर्फ ये 80-20 में से 20 वाले प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं. सो मुझे ये समझ में आया कि दो आई वॉज ऑलवेज वेरी पर्टिकुलर, मैंने बड़ी बड़ी SOPs बना के रखी थी कि प्यून सुबह आके ये करेगा, वो करेगा, फलाना ढिमका डिटका. ये सिर्फ SOP सारी पेपर पे रहती थी, वो वॉल पे वो चिपकाते थे एंड कोई भी SOP फॉलो नहीं कर रहा था. एंड इमेजिन एज अ बिजनेस ओनर, जब आप आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपका प्यून टाइम पे आ रहा है कि नहीं, आपका प्यून झाड़ू पोछा कर रहा है कि नहीं, वो चाय में प्रॉपर क्वांटिटी जो ला रहा है चाय बनाने के लिए, वो ऑफिस में चाय यूज हो रही है या उसके घर पे हो रही है, ये देखने के लिए हमारे पास समय नहीं होता. सो I totally failed in this concept of SOP previously before I learned science from sir. Second, I understood मेरे 80-20 में एडमिन में प्रॉब्लम ये था
कि जो कॉस्ट थी उसके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। समझ नहीं समझ में आ रहा था कि ये कॉस्ट कैसे हम लोग कंट्रोल करें। व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई मीन कि जब भी मैं सडनली ऑफिस जाता था और ये ग्लैडिएटर की तरह मेरा प्यून या कोई एडमिन बंदा आता था मेरे पास और बोलता था कि सर वो जो एसी है वो कॉन्क ऑफ हो गया, तो सडनली मैं रियलाइज करता था, अरे एसी तो यार लास्ट मंथ में ही हमने ठीक ठाक किया था, उसके लिए एक बड़ा बिल बना था 16,000 रुपए का, आज फिर से कैसे हुआ। तो वो बोलता था कि सर वो कोई तो उसमें अंदर का कुछ फ्यूज भी उड़ गया है। नाउ इमेजिन गाइस, व्हेन वी गो टू ऑफिस एंड इतनी सारी चीजें हो रही है, तो आप वो ऑफिस का वो एसी का फ्यूज उड़ गया, इसके लिए आप क्या बोलोगे कि ठीक है भाई तू यार नया डाल दे और नया कर दे, मतलब 16,000 का नया बिल। सो कॉस्ट वाज एब्सोल्युटली नॉट इन कंट्रोल। अभी ये थी मेरे साइड के प्रॉब्लम। अभी देयर वे सम प्रॉब्लम्स टुवर्ड्स द एडमिन स्टाफ आल्सो। अभी एडमिन में नॉर्मली अपना जो ब्लू कॉलर स्टाफ होता है, मतलब आपके प्यून्स होते हैं, कंपैरेटिवली दैट ब्लू कॉलर काइंड ऑफ कैटेगरी, उनको भी प्रॉब्लम होते थे। उनको ये होता था कि मेरा जो प्यून होता था वो मेरे सीनियर्स का घर का प्यून हो गया था। उसको ऑफिस के तो काम करने ही पड़ते थे, बट कुछ सीनियर्स भी उसको काम देते थे कि अरे तू जाके यार मेरे बच्चे को उठा के लेके आए ना। एंड दैट गाय अंडर पीयर प्रेशर, बिकॉज सीनियर ने बोला है तो कैसा मना करे, बिकॉज सीनियर जो बोलेगा वो सर सुनेंगे, तो वो पीयर प्रेशर से वो भी बेचारा प्रॉब्लम में आता था। नाउ इमेजिन गाइस कि डोंट यू थिंक समटाइम्स यू गेट इनटू द शूज ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑल्सो। आपको ये प्रॉब्लम समझ में आते हैं, बट आप इतनी टॉप पोस्ट या आपके चेयरमैनशिप के टेबल पे बैठ के भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे। इफ आई आस्क एनी ऑफ यू, एक मैं पोल कर लूं कि क्या आप में आज की तारीख में किसी में ताकत है आपके कोई सीनियर मेंबर को ये बोलने की प्यून को मत इस्तेमाल कर, बिकॉज आपको इमीडिएटली साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट आता है कि बॉस अगर मैंने सीनियर को कुछ बोला और ये भाग गया या निकल गया या इसको ईगो हर्ट हुआ तो मेरा लाइफ तो प्रॉब्लम में हो जाएगा। सो इसलिए आप बहुत सारी चीजें अनदेखी करते हो, एंड मोस्टली दिस हैपेंस इन द एडमिन डिपार्टमेंट। सो ये थे मेरे 20% वाले प्रॉब्लम। नाउ आई विल टेल यू कि सर ने जब मुझे साइंसेस हमें सिखाए तब इसके ऊपर मैंने क्या किया। वेंकी, कैन यू प्लीज शो द स्लाइड। या So we made this slide. It's a very simple slide. I would request everybody to zoom it if possible. So हमने क्या किया कि with help of the BCI sciences which we were taught, हमने एक सिस्टम बिठा दी। ये सिस्टम एकदम सिंपल है। हमने हमारी जो एडमिन एक्टिविटी थी उनको हमने स्टैगर किया, हमने उनको डिवाइड किया कि भाई डेली एक्टिविटी कौन सी करनी है, मंथली एक्टिविटी कौन सी करनी है, वीकली एक्टिविटी कौन सी करनी है। पहले हमने उन सबको स्टैगर किया। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ डिटेल में जाते हैं डेली एक्टिविटीज। तो ऑफिस में आपके डेली एक्टिविटी क्या होती है? मॉपिंग होता है, डस्टिंग होता है, से बेबी मेरे केबिन का क्लीनिंग होता है, पैसेज का क्लीनिंग होता है, किचन का क्लीनिंग होता है। ये हुई मेरी सारी डेली एक्टिविटीज। सो वंस वी चॉक डाउन ऑल द डेली एक्टिविटीज, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई ये एक्टिविटीज करता कौन है अपने ऑफिस में। तो ऑब्वियसली हमने एक पर्सन उसके लिए डेप्यूट किया, विच वॉज रंजना। रंजना हमारी क्लीनर है। सो पहले क्या होता था कि रंजना चाय भी बनाती थी, क्लीनिंग भी करती थी, और अगर जरूरत पड़े तो सीनियर के ऑफिस में जाके अगर उसकी मेड नहीं आई तो उसका भी काम करती थी। ओके, सो यहाँ पे हमने फिर असर्टन किया कि विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप डिवीजन ऑफ लेबर हमने ये तय किया कि रंजना सिर्फ यही काम करेगी। सो आफ्टर वी मेड दिस शीट, रंजना को समझ में आया कि मुझे ये पर्टिकुलर एक्टिविटी रोज आके करनी है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने वीडियोस डाले कि रंजना ये जो क्लीनिंग एक्टिविटी है वो कैसे करेगी। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये जो रंजना आपके भी ऑफिस में आती होगी वो कुछ भी झाड़ू पोछा ऐसा आगे आगे ऊपर नीचे करके निकलती होगी। तो व्हाट वी डिड इज दैट वी क्रिएटेड वीडियोस कि हाउ डू वी वांट द क्लीनिंग टू हैपन। सो सपोज कल को अगर रंजना छोड़ के जाती है और वहां पे मंजना आती है, तो मंजना को सिर्फ वो वीडियो देखना है, एंड विद इन 1 वीक्स टाइम शी विल बी ट्रेन्ड हाउ टू क्लीन द ऑफिस द वे एग्जैक्टली रंजना इज टू डू। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 चीजें हमने अचीव की। एक तो रंजना को समझ में आया कि चाय बनाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम झाड़ू पोछा करना है। दूसरा, रंजना को ये भी समझ में आया कि अगर मैं छोड़ के गई तो देयर इज समबडी एल्स हु विल कम एंड इजीली रिप्लेस मी। नाउ व्हेनेवर शी डज दैट एक्टिविटी, इफ यू सी दोज मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वहां पे उसको सिर्फ आके टिक करना है। दे जस्ट हैव टू टिक इट। सो क्या होता है कि माई ईए
अंडरस्टैंड्स कि रंजना ने आके ये पर्टिकुलर एक्टिविटी की कि नहीं की। अगर उसने नहीं की है तो रेड दिखता है। अभी कल को गोकुलाष्टमी की छुट्टी थी, कल जन्माष्टमी की इन बॉम्बे, सो देखो रेड आया पूरा वहां पे। सो रेड मीन्स उसने वो एक्टिविटी नहीं की है उस दिन। ओके, सो इससे क्या हुआ, वंस दिस शीट केम इनटू पिक्चर, राइट फ्रॉम माय डेली एक्टिविटीज टू माय वीकली एक्टिविटीज टू माय मंथली एक्टिविटीज। मंथली एक्टिविटीज में अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है या अपने एयर कंडीशनर्स है, उनके एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो सारी इस पर्टिकुलर सिस्टम में सेट हो गए। एंड यू बिलीव मी, आफ्टर दिस शीट वाज मेड, आफ्टर दैट मेरे पास कभी भी हैप्पीजार्ड में ऐसा कोई भी बिल नहीं आया है कि भाई ये कॉन्क ऑफ हुआ इसलिए ये भरना है, वो कॉन्क ऑफ हुआ है इसलिए ये भरना है। ये मेरा पूरा का पूरा जो शीट है वो मेरे ही ऑफिस में एक शंकर नाम का बंदा है जो 14 साल से मेरे साथ है। ही इज अ प्यून। हमारे ऑफिस का पूरा एडमिन है, वो पूरा शंकर संभालता है। एंड he was a peon as he joined, but today he's almost like an admin, and just purely because of this sheet. And the biggest achievement of this sheet is कि मैं एडमिन से बाहर निकला। So whenever I take you to each department, this is the last line I will always use कि मैं झाड़ू पोछे से बाहर निकला। तो मतलब ये वाला पूरा एडमिन का पूरा सिस्टम और मेंटेनेंस का पूरा सिस्टम ऑटो पायलट हो गया। एब्सोल्युटली ऑटो पायलट हो गया। एंड सर ऑटो पायलट ही नहीं हुआ, ऑटो पायलट के लिए मैंने कोई बड़ा मैनेजर नहीं लाया। मेरा इन हाउस एक शंकर नाम का स्टाफ था जो 14 साल से हमारे पास है, वो ये सब पूरा ऑपरेट कर रहा है। वेरी नाइस। इनिशियली सर ये जो स्टाफ था ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो सबको लगा कि ये कैसे कंप्यूटर यूज करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने सर, इफ यू रिमेम्बर, आपने एक फ्रेज दिया था कि ओला उबर के ड्राइवर भी पढ़े लिखे नहीं है, बट व्हेन सिस्टम्स केम दे स्टार्टेड यूजिंग इट। Very nice. So yeah, we'll have to move a little fast also. ठीक है, चलो can we Venki, can we go next quickly after admin? So admin से क्या advantage हुआ? Okay, so let's go to acquisition now. Acquisition में ये होता था कि in real estate it is a very important thing to acquire the right project. पहले ये होता था कि since I used to be very busy in this झाड़ू पोछा activity, हमारा एक्विजिशन का जो प्रोसेस था वो प्रॉपर स्ट्रीमलाइन नहीं था। तो नॉर्मली इफ आई रिमेम्बर बिफोर 22 हमारे जो एक्विजिशन होते थे वो बहुत रैंडमली होते थे। मतलब कोई पहचान वाला मिला, ठीक ठाक लगा, उस वक्त कैपिटल अगर जमा है कंपनी में तो वो हिसाब से हम लोग रैंडमली डील किया करते थे। देयर वाज नो फोकस थॉट प्रोसेस। आफ्टर बीएमपी I created a proper acquisition department, and उस acquisition department को मैंने एक शीट बना के दी, एक सिस्टम बना के दी, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोकॉम शीट। वेंकी, कैन यू शो द प्रोकॉम शीट प्लीज? सो आई हैव जस्ट ब्लर्ड द फिगर्स। सो ये बेसिकली वंस दिस प्रोकॉम शीट केम इनटू एक्शन, एक ह्यूज डिफरेंस हुआ ऑर्गेनाइजेशन में। डिफरेंस ये हुआ कि जो हर एक प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, हम उस प्रोजेक्ट का एक कंपैरिजन बनाते हैं, एंड उस कंपैरिजन में हमको समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का प्रॉफिट परसेंट क्या है। एंड मैंने अभी एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है कि अगर प्रोजेक्ट में 40% अबव प्रॉफिट है बस तो ही मेरे पास वो लाइए, अदरवाइज वाले प्रोजेक्ट मेरे पास मत लाइए। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फिल्टर विच वी हैव पुट इन, व्हाट हैपेंस इज कि जो टीम एक्विजिशन कर रही है उनको भी क्लैरिटी है कि अगर प्रोजेक्ट 40% के ऊपर है तो ही सर के पास लाना है, अदरवाइज डोंट वेस्ट माय टाइम। So this basically slowly and steadily helps you to empower, आपका जो लोअर लेवल है उसको भी आप empower कर रहे हो to make decision. Okay. तो अब ये एक्विजिशन में आपका टाइम कम हो गया as now started, और इसका फायदा क्या हुआ? So sir, the best thing is कि पहले एक्विजिशन की मीटिंग्स में मैं बैठता था, एंड एक्विजिशन की मीटिंग ऐसी होती है कि 10 प्रोजेक्ट देखते हो तो एक आध दूसरा आपको ठीक लगता है। सो अभी क्या हुआ कि आई क्रिएटेड वन डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट ओनली बुधवार एंड गुरुवार को सारे जो चैनल पार्टनर्स होते हैं उनको बुलाता है और वहां पे उनकी मीटिंग करता है। तो इसमें ये हुआ कि बिकॉज एक्विजिशन वाज आउट फ्रॉम माय टेबल एंड इट वेंट टू सम अदर टेबल, एंड अदर टेबल को भी मैंने डिसीजन अथॉरिटी दे दी कि 40% ऊपर होगा तो ही हमको ये करना है। उसके वजह से आई टोटली केम आउट ऑफ दिस एक्विजिशन प्रोसेस सर। एंड अभी ये हुआ कि बिकॉज वी चोज द राइट प्रोजेक्ट्स, इफ आई सी द जीपी ऑफ माय कंपनी, my GP has absolutely gone rooftop, जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा।
So this was a huge turnaround when I created systems for my acquisition department. So Very nice. please choose your business properly. That's what I would like to say in this. And I have totally out of this acquisition now. Go to the next slide, please. बट फाइनल डिसीजन आप ही लेते हो. फाइनल डिसीजन मैं लेता हूँ. यस, Very nice. 40%. बट वो पहले जो 20-50 प्रोजेक्ट देखने होते थे, शॉर्टलिस्ट करने होते थे, ये करना होता था, वो करना था, वो सब आपने पूरा टेम्पलेटाइज करके उसको ऑटो पायलट पे डाल दिया. Absolutely. And one more thing, sir, what I did is कि मुझे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं. वेंकी, कैन यू जस्ट टेक द साइड ब्लैक प्लीज. पीछे लीजिए जरा, एक मिनट. स्लाइड प्रोकॉम शीट दिखाइए. सर, इन दिस ऑल्सो व्हाट आई हैव डन, एक्सट्रीम राइट में मैंने ये अप्रूव्ड एंड नॉट अप्रूव्ड लिखा है ना, वो मैं कहीं से भी दबा देता हूँ. सो यू कैन डू दिस. मतलब ये सारा डेटा स्टडी करके करते हो. पहले आप मतलब पहले परसेप्शन से करते थे, अब डेटा से करते हो. यस, एंड डेटा भी मेरी टीम मुझे देती है. उसके बाद मैं सिर्फ बटन दबाता हूँ, अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड, दैट्स ऑल. वेरी नाइस. नेक्स्ट. Yeah, go next, Venki. Approval. Okay, so now approval in real estate is one of the biggest speed breaker. Approval में आप लोग सब जितने भी हैं, प्लीज लुक एट दिस फ्रॉम लाइजनिंग ऑफ एनी काइंड. जब आपकी कंपनी में कोई भी किस्म की लाइजनिंग होती है, तो वो लाइजनिंग या जो भी गवर्नमेंट के साथ होता है, वो सब खुद ही करना पड़ता है. यस. So basically approvals in real estate is quite a speed breaker basically. So पहले ये होता था कि बहुत सारे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, उनके साथ सबके साथ जाके मैं खुद डील करता था. बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट मैं वहां पे जाना और मैं बात करना, उससे देयर विल बी हेल ऑफ अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस इन टू थिंग्स. वन इज स्पीड, एंड दूसरा जो फेवरिज्म होता है उसमें ऑब्वियसली आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे एडवांटेज मिलेगा. बट आफ्टर डूइंग BCI आई रियलाइज्ड कि जब मैंने मेरा पूरा प्रोजेक्ट के कंपार्टमेंटलाइज किया और उसमें मेरे अप्रूवल के कॉस्ट देखे, और अप्रूवल्स के लिए जो फैसिलिटेशन फंड का एक सेक्शन हम रखते हैं वो देखा, तो वो जो सेक्शन था वो इतना छोटा था कि आई रियलाइज्ड कि ये बचाने के लिए अगर मुझे इतना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, तो आई बेटर फॉरगो दिस पार्ट एंड असाइन समबडी देयर. So this was such a fantastic outcome which came to me when I started putting my figures for each departments. I started understanding कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट में खुद को मेरा दिमाग लगाने देना है. कभी कभी ऐसा होता है कि 10 रुपया बचाने के लिए अगर मेरे 5 घंटे जा रहे हैं, तो I better say that वो 10 रुपया जाने दो. So the biggest thing which happened in approval is, sir, that I basically stopped going to all the departments. मैंने एक dedicated resource डाल दिया, उसको मैंने कुछ फ्लेक्सिबल राइट्स दिए, एंड नाउ ही गोज एंड ही गेट्स ऑल द अप्रूवल्स फॉर मी इन द डिपार्टमेंट. पर वो काम अच्छा हो रहा है कि काम की क्वालिटी नीचे हो गई है? इट इज मच बेटर सर, बिकॉज जब मैं जाता था तो मेरे से 1 से 2 जाते थे. अभी मैं नहीं जाता तो 2 से 1 ही जाता है. मतलब इनफैक्ट वहां पे भी सेविंग हो गया है. वेरी नाइस. सो इट वाज रियली फैंटास्टिक. अप्रूवल्स में ये हुआ सर, लाइजनिंग का पार्ट. हम में से बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट में डिपेंड रहते हैं हमारे बिजनेसेस के लिए, उनको ये पता होगा, उनका ये पेन पॉइंट होगा कि कोई भी अप्रूवल के लिए आपको कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं. सो बहुत बार ये होता है कि हमारी टीम वो कंप्लायंसेस पूरी न किए बिना जाके डिपार्टमेंट में बैठ जाती है, और देन ऑब्वियसली द कंसर्न पर्सन ही विल ट्राई टू पुट मोर वेट ऑन यू कि मैं नहीं दूंगा अप्रूवल जब तक कंप्लायंस नहीं आते. तो ये सारा जो हमारे कंपनी में प्रॉब्लम था, वो आफ्टर आई स्टार्टेड putting the systems which you gave me, sir, हमारे सारे compliance भी ऑटो पायलट हो जाता है. Yes, Venki, can you show how we made the compliances auto pilot? Guys, you want to see that? आपके यहाँ compliances होते हैं, नहीं होते? हाँ जी, we'll have to hurry up a little. Yeah, so if you see, these are the steps, like step 1 में जब एक suppose मुझे clean CC चाहिए, तो प्लीन सीसी के लिए स्टेप 1 में मुझे से CFO की परमिशन चाहिए, मुझे असेसमेंट का ये चाहिए, मुझे आई नीड सम सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक. तो ये सारे स्टेप्स मैंने चॉक डाउन किए और हर एक स्टेप का टैग टाइम किया. तो विद दिस व्हाट हैपेंस इज कि हर एक मेरे जो डिपार्टमेंट है उनको सिग्नल मिलता है
कि भाई मुझे बुधवार को सर को किसी भी हालत में असेसमेंट का एनओसी देना है। एंड सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, ये सारे कंप्लायंसेस को मैंने टैट टाइम देने की वजह से जब मेरी प्लिंथ लेने की टाइम आता है तो मेरे सारे कंप्लायंसेस मेरे हाथ में होते हैं। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू तो प्रोसीड। अब कंप्लायंसेस टाइम पे रिजल्ट्स बता दो, बेनिफिट्स रिजल्ट। अब कंप्लाई इससे फायदा क्या हुआ? compliances are coming absolutely on time, absolutely on time, गवर्नमेंट कंप्लायंस भी टाइम पे आने लग गए। absolutely on time. इनफैक्ट सर 5-5 6-6 दिन या एक वीक पहले भी आ जाते हैं। वेरी नाइस। इतना बढ़िया टर्नअराउंड। या विकी गो अहेड। और ये अब पूरा ऑटो पायलट पे अपने आप हो रहा है आपके बिना? एब्सोल्युटली, आई एम टोटली आउट ऑफ इट। द डेडिकेटेड रिसोर्स वाज देयर, उनको सिस्टम लगा के दे दिया है। अभी वो लोग इतना बढ़िया काम करे कि अप्रूवल इज नो ब्रेनर फॉर मी नाउ। वेरी नाइस। कैन यू टेक अहेड प्लीज आफ्टर अप्रूवल? गाइस, आप लोग बोलते हो गवर्नमेंट से लेट हो जाता है, गवर्नमेंट से लेट हो जाता है, गवर्नमेंट से लेट हो जाता है, समझ में आया? सो गवर्नमेंट से सर लेट होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है अभी सिस्टम की वजह से। इट इज एब्सोल्युटली अ केक वॉक, एब्सोल्युटली अ केक वॉक। वेरी नाइस। So let us quickly go to sales. So basically, I think everybody here, forget real estate, everybody here is always worried about sales, sales, sales. So sales का तो जो साइंस सर ने हमको एक पर्टिकुलर वीक्स के बाद सिखाया was so amazing. Before we learned the science, जब बड़े मुझे 80-20 में से 20 वाले प्रॉब्लम आते थे, वो ये थे कि सेल कभी कभी डिजायर्ड नहीं होता था बिकॉज मैं सेल्स टीम को जाके टारगेट देता था, वो टारगेट कभी अचीव नहीं होता था। वो दिए हुए टारगेट के बेस पे मैं मेरा फंड फ्लो ऑर्गेनाइज करता था। बिकॉज द टारगेट इज नॉट अचीव्ड, मेरा फंड फ्लो ठीक नहीं होता था। फंड फ्लो नहीं ठीक होता था, इसलिए सडनली मुझे लोन लेना पड़ता था। लोन लेना पड़ता था तो प्रेशर आता था, डिसीजन गलत होते थे। सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज दैट सेल इज सच अ इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर यू डू ऑल द ऑपरेशंस करेक्टली, कि अगर आपका इवेंचुअली सेल ठीक नहीं हुआ तो आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग गड़गड़ा जाता है, यू नो। एंड दैट इज अ पॉइंट वेयर any entrepreneur starts getting frustrated. But trust me guys, you will be surprised, and sir is aware of it. Last week अभी हमारे because of the systems ये हाल है कि last week मैंने सर को फोन किया कि सर सेल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि should I stop it for 6 months and फिर मैं फिर से एक लॉन्च करता हूँ ताकि मुझे प्राइस राइज हाइक मिले। So right now the scene with Roosevelt is कि the project which we launched in 22, we could sell 552 flats only in a span of around 12 to 13 months. So with the systems and the sciences which we have put in, हमारा sale rocket high हो गया। You know, luckily real estate is also doing well in Bombay, but I think we are doing the best in Bombay right now. पहले क्या होता था सेल्स में, अब क्या होता है? So पहले सर ये होता था कि एक तो मैं टारगेट जो देता था मेरे सेल्स टीम को, पहले क्या रिजल्ट्स आते थे, अब क्या आ रहे हैं? ओके वेंकी, कैन यू शो द स्लाइड ऑफ द रजिस्ट्रेशन? सर मैं आपका सेल का नहीं, मैं आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन का दिखाता हूँ। ये स्लाइड बाद में करते हैं। वेंकी जस्ट गो अहेड, शो डायरेक्टली द रजिस्ट्रेशन पार्ट। वेट हियर सर, सी दिस इज व्हाट द ग्राफ इज। कैन यू सी द ग्राफ सर? कैन एवरीबडी सी द ग्राफ? Yes. So in Jan 24, we did 24 registrations. हमारी यहाँ से स्टोरी शुरू हुई। And last month sir, August complete नहीं हुआ है, so in July we did the all time highest, that is 56 registrations in 1 month sir. Wow, so you doubled your sales. Yes, and ये जो 39 है सर, ये अगस्त है, अगस्त पूरा नहीं हुआ है। ये शीट मैंने 3 दिन पहले बनाई है, एंड लास्ट 3 दिन में हमारे ऑलमोस्ट 15 to 16 रजिस्ट्रेशन हो गए। तो आई थिंक अगस्त विल बी द ऑल टाइम हाईएस्ट मंथ फॉर अस। ये हुई सर रजिस्ट्रेशन की बात। अगर आप ऊपर का देखोगे, यू सी द वे वी हैव राइज द प्राइस हाइक कैसे किया। देखिए, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग 16,447 से शुरू किए थे, वो टुडे वी आर सेलिंग इट एट 25,000 रुपीज विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट टू एनीबडी। तो आपने डिस्काउंट्स भी बंद कर दिए सारे? डिस्काउंट्स टोटली सर बंद कर दिए। रियल एस्टेट में डिस्काउंट बंद करके काम हो सकता है? 110% सर, पर उसके लिए यू नीड टू बी पेशेंटली अटेंडिंग द 9 months. So guys, do you have a challenge of discounts and people not paying up and sales not happening? So I'm sure sir, these are the people here are going through exactly the spaces we went through. But guys, let me assure you,
सेल्स मतलब द वे सर विल टेक द सेल्स एंड जो रॉकेट लग जाएंगे ना, वो आपको मतलब यू बेटर गेट योर ऑपरेशंस प्रॉपर्ली डन, आई वुड से आपके ऑपरेशन फटाफट ठीक ठाक कर लीजिए. So basically, Venki, can you go back? Yeah. और ये सारा का सारा सिस्टम जो बनाया है, ये सारा सिस्टम गूगल पे बनाया है? The entire system is done on Google. और ये कहाँ सीखा आपने? आपको आता था, क्या था? Sir, when I started in 22, मुझे सिर्फ एक बेसिक गूगल शीट बनाने आती थी. I knew nothing about it. And whatever I learned with the tech platform which you gave us. And वहीं से हमारी स्टोरी शुरू हुई. And I, sir, would take 1 minute here कि मैं सबको ये पक्का बोलूंगा कि I think sir must have already asked you guys to hire a EA and a MIS guy. Please एक चीज करिए, I request you from the bottom of my heart. EA and MIS का बजट है, वो दिल बड़ा करके बड़ा रखिए. Because I think I was one person in the class when I walked the journey with sir कि मैंने ये काफी जल्दी जान लिया था कि इस क्लास में सर के जो साइंसेस है ना, वो अमृत है. दे आर ऑल गोल्ड. सो प्लीज ऑब्जर्व ऑल द साइंसेस. टेक्नोलॉजी जब आएगी तो टेक्नोलॉजी का फोमो मत करिए. बिकॉज आई एम वन बिग एग्जाम्पल ऑफ दिस कि मुझे जेन्युइनली आई वॉज नॉट वेरी टेक्नोलॉजी सेवी पर्सन. तो व्हाट आई डिड इज कि टेक्नोलॉजी जो सर ने बाद में क्लास में हमारी ली, उसके लिए मैं तो खुद बैठा क्लास में, बट मेरे साथ मैंने एक अच्छा MIS का बंदा लिया. And that MIS Ganda and I together, with the help of my EA also, together we have built all these systems, sir. वेरी नाइस. तो और ये सब कोरिलेटेड, इंटररिलेटेड सारी एक्सेल शीट्स है सारी. सारी interrelated है. Since we have short time, I am not able to show you everything, but basically Okay, let's move. Yeah, let's move ahead. Yeah, make it take it ahead. सर एक छोटा सा स्लाइड था. ये दिस इज जस्ट टू शो कि सर ने हमें एक बार बोला था कि कभी भी आपको आपकी टीम को कुछ भी कन्वे करना होगा तो आप बात से कन्वे करना या लिख के कन्वे करना, उससे अच्छा अगर आप उनको कुछ दिखाते हो तो दैट इज द राइट वे टू कन्वे. तो दिस इज वन जस्ट स्मॉल एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. वेंकी, कैन यू शो दैट वीडियो? सो सर, सो गाइज व्हाट हैपेंड इज कि मेरी सेल और CRM टीम के बीच में एक डिस्कॉर्ड था. तो कस्टमर बुक करते थे पर रजिस्टर नहीं करते थे. उस बीच में उस पीरियड के दौरान कैंसलेशन हो रहे थे. तो जब मैंने मेरे सेल्स हेड को और CRM हेड को बिठाया और उनको ये वीडियो दिखाया, तो उनके पास से मुझे एक कॉन्सेप्ट आया कि सर हम इसके बीच में एक ब्रिज बनाते हैं जिसको हम PR ब्रिज बोलते हैं. ये सब जब मैंने वीडियो बनाया तब हमारा कैंसलेशन का सर जो रेट था was almost around 20%. After the solution of PR bridge came, our cancellations have gone down to 2%. Wow. So कोई भी विजुअल चीज आप जब टीम को समझाते हो या किसी को भी दिखाते हो तो जस्ट इमेजिन हाउ क्विकली दे कम अप विद सॉल्यूशन एंड उस सॉल्यूशन का क्या रिजल्ट आता है. इमेजिन फ्रॉम 20% to 2%. मतलब वैसे देखा जाए तो मेरा GP है सर, वो 10 से 12% बढ़ गया वहां पे. Very nice. Let's move ahead. Yeah, Vicky, go ahead. So this is how my scoring of my team happens. Just go ahead, Venki. ये सब गूगल पे है. सब गूगल पे, एवरीथिंग इज ऑन गूगल. जस्ट आगे बढ़िए. सेल्स करते वक्त सर अभी कोई डेस्परेशन नहीं होता. क्लाइंट को अपने पास खींचने के लिए डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं होती. क्लाइंट अपने आप आके हमारे यहाँ पे परफेक्ट बुकिंग कर लेता है बिकॉज उसको हमारा सिस्टम इतना अच्छा लगता है कि he loves the way the flow chart happens. He just gets back to back support from each and every team one by one, and they are really happy about it. So now as far as finance is concerned, quickly I'll just go through कि guys, as I told you in the beginning of the sharing session कि हम सबके लिए कमाते हैं एक्सेप्ट फॉर हमारे लिए. हम हमारी कंपनी को बढ़ाते हैं, हमारे स्टाफ्स को हम लोग आगे लेके जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अवर पर्सनल वेल्थ हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते. एंड ये मतलब आई वुड सर रियली लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि बिकॉज ऑफ दिस एंटायर कोर्स जब मैं इस झाड़ू पोछे से बाहर आया तब मैंने फर्स्ट टाइम सर मेरी लाइफ में मेरी एक फाइनेंस शीट बना ली जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट जो आपने हमें पढ़ने को कहा था,
मैं हर महीने अपने लिए एक साइजेबल हैंडसम प्रॉफिट हर महीने विड्रॉ करके घर पे लेके जाता हूँ. एंड सर यू वोंट बिलीव, उसमें इतना बड़ा आनंद मिलता है. बिकॉज पहले क्या होता था कि पहले कभी प्रॉफिट हमने घर लेके ही नहीं गए. हम पहले हमेशा ये होता था कि प्रॉफिट आया, बिजनेस में डाला, फिर से बिजनेस दूसरा प्रोजेक्ट लिया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और चौथा अटक गया तो सब गया. सो नाउ वेरी नाइस गाइस, कैन यू रिलेट टू दिस पार्ट? क्योंकि ये पार्ट हमने कवर कर रखा है कि कौन सी किताब पढ़नी है, क्या करना है, कैसे करना है. बाकी सब चीजें आप रिलेट नहीं कर पाओगे. आपको लग रहा होगा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. बट आप फाइनेंस की जब ये शेयरिंग कर रहे हैं तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ये ऐसे होता है और ये मुझे आता है अब, और मैं कर भी रहा हूं. यस, तो वो इसलिए आप रिलेट कर पा रहे हो और इसलिए आपको आंसर्स मालूम है, क्योंकि आप कर चुके हो और अभी आप इंप्लीमेंट करने के स्टेज पे हो. मगर बाकी सारी चीजें अभी जैसे ये बोल रहे हैं लगता है कि हो नहीं सकती, कैसे होंगी, सेल्स कैसे हो सकती है, इतनी सेल्स रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट में आसान नहीं है, डिस्काउंटिंग मुश्किल है, ब्ला 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 ब्ला, सिस्टम कैसे बनेंगे, ब्ला 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 ब्ला. मगर वो सब चीजें जब 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 धीरे 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 यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ इट. ओके. Yeah. So finance में, as I told you that it is a must कि every person who is working so hard, ये सारे जो entrepreneurs बैठे हैं, आप लोग, हम हैं, उनको एक सर पक्का एक पॉइंट पे लाते हैं जहाँ पे we become absolutely in control not only of finance but each and every section of your department. And imagine हर महीना जब आप आपका प्रॉफिट घर लेके जाते हो, तो as a businessman it is a huge motivator, sir. It is a huge motivator. And sir, I would just like to thank you for this, because ये सब करके eventually this is the outcome कि हर महीने being a real estate player, I take my profits home without putting the project in any kind of jeopardy. Very nice. Okay. Venki, go ahead. Great. Go ahead. Great. So that's it, sir. I think ज़्यादा बोलना, I think I'll confuse. What are the overall, इसको बंद कर दो जरा. Overall, what are the results that you have got? So sir, before the results, see what is the trajectory right now. Can you see this, everybody? Yes. Can you see it, guys? In 2022, Roosevelt had only one project. As I talk to you, last year in 2023, I was so confident after gaining all this knowledge that I just went ahead and took over a very big project. The gross revenue of that project is 2000 crore. And let me tell you that within 16 months time, ये जो project जिसकी 2000 crore की gross revenue है, वो financial autopilot और operational autopilot में already चला गया. And this year, एक मिनट, इसको थोड़ा पहले एक let's just revise. आपका कोर्स खत्म कब हुआ है? I completed, sir, in December Jan. December Jan, which year? 23. वेरी नाइस. तो आपका जब बीएमपी का कोर्स चल रहा था उससे पहले आपका क्या टर्नओवर था? 200 crore. और कोर्स खत्म करते करते करने के बाद ये कितना हो गया? 2000 crore. सर मैं आपके, I think when I was with your 10th or 12th week ना, I think 14th week में ना, sir, I think we all were at a point, and I'm sure all these guys also will be, कि जहाँ पे I was very confident that I can take this kind of project. और अब ये 4,000 करोड़ अभी है, कब है? No, so now, sir, from the month of October till December, ये 3 महीने में we have already lined up and acquired projects which are going to be launched, and वो total 4 projects है, और वो चारों projects का gross revenue is 4,000 crore. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, इसको बंद करना. एंड हाउ मच, अब टाइम कितना देना पड़ता है? Yeah, पहले आप 200 करोड़ का टर्नओवर करते थे, कितना टाइम देना पड़ता था? अब आप 2000 का टॉप रहे हो, कितना टाइम देना पड़ रहा है? वेंकी, कैन यू शो द वीकली शीट फॉर अ मिनट? पहले सर मैं जब 200 करोड़ का कर रहा था काम, आई वॉज ऑलवेज बिजी, आई वॉज ऑलवेज इन ऑफिस. ओके, एंड सर इफ यू सी, दिस इज माई शीट विच वॉज मेड लास्ट मंथ. ये जो सारा ग्रीन दिख रहा है सर, हाँ, वो ग्रीन इज माई एंटायर फ्री टाइम. एंड ऊपर जो आपको दिख रहा है 46.88%,
हम्म इज माय टारगेट मेरा ये होता है कि हर महीना ये मैं 10% कम करूं। वेरी नाइस। तो अभी नेट ऑफ नेट, एक मिनट इसको बंद करो जरा सर को। बंद करेंगे। नेट ऑफ नेट आप ये बताओ कि अभी ऑपरेशंस चलाने के लिए, सेल्स छोड़ दो, ऑपरेशंस चलाने के लिए आपको हफ्ते में कितना टाइम लगाना पड़ता है? मुझे हफ्ते में एक दिन में ईएम करता हूँ ऑपरेशन के लिए, बस दैट्स ऑल। ईएम? दैट्स ऑल। तो ये बाकी सब जो बिजी था इसमें क्या था वो सर व्हाट आई डू इज कि जो जो मेरा सेल्स होता है, मेरा फाइनेंस होता है, उसमें मेरा पूरा जो एक्सपांशन का जो मेरा लुकआउट होता है ना, एक्सपांशन फॉर द एक्सपांशन ऑफ द कंपनी। So the growth and expansion of the next year, this year. यस, नेक्स्ट ईयर का जो अभी लॉन्चेस है ना मेरे, बस उसमें मैं आई एम फोकसिंग राइट नाउ। Very nice, very nice. तो ये जो मैं कर रहा हूँ सर मंडे को इज प्योरली अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशंस। Very nice. और बाकी सारा time is only going on growth and future. ग्रोथ एक्सपांशन, दैट्स ऑल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। Very nice. Anything else that you would like to share before we? So guys, a couple of things I would really like that you people, maybe if I'm really, I can convey you from my heart कि एक मतलब आप प्लीज शेयरिंग एकदम सीरियसली लीजिए। नंबर वन, डोंट इग्नोर शेयरिंग। शेयरिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा, हायर द बेस्ट ईए एंड द बेस्ट एमआईएस। थर्ड, प्लीज टेक्नोलॉजी से फोमो मत करिए। आई नेवर न्यू हाउ टू ऑपरेट गूगल शीट्स। मतलब गूगल शीट आती थी बट नॉट टू दिस लेवल। मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में ये पूरा सर हैज द मैकेनिज्म, वो हमको सिखा के बराबर कर लेते हैं। बट प्लीज डोंट हैव फोमो ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज सर के जो साइंसेस है उनको अमृत समझ के एक एक करके लिख के आपके इधर बढ़िया ये करो, बिकॉज ये साइंसेस आपको कहीं नहीं मिलने वाले। टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच यू विल गेट विथ वेरियस प्रोबेबल ऑप्शंस, बट सर के साइंसेस है, उनको प्लीज डीएमएल फॉर्मूला लगाइए एंड जैसा वो बोले एग्जैक्टली वैसे उसको छाप के करिए। प्लीज उसमें प्लीज डीएमएल करो, दिमाग मत लगाओ सर। दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल। वेरी नाइस। सब पूछ रहे हैं शेयरिंग कौन सा है, शेयरिंग कौन सा वाला शेयरिंग आप बात कह रहे हो? जल्दी। शेयरिंग मतलब जो दो टाइप के शेयरिंग की बात कर रहा हूं मैं। एक तो सर के जो क्लास होता है उसमें फर्स्ट हाफ में समटाइम्स डिफरेंट पीपल कम विद शेयरिंग कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक वो शेयरिंग। एंड दूसरा, आपकी जो कम्युनिटी है, उनके जो ग्रुप बनते हैं, वो हम लोग हमारे बैच में हम लोग सैटरडे वी आर डिसाइडेड, तो सैटरडे को हम लोग सब लोग कम्युनिटी करके ग्रुप बना के 2 घंटा शेयर करते थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अबाउट दैट शेयरिंग बेसिकली। Good and very nice. So I hope this got some, हर बार आप बोलते हो कि रियल एस्टेट का ले आओ, कुछ ले आओ, कुछ ले आओ। So I hope that all got some sense about how this works and what happens. Shantanu, can you share your number? Is that possible? Yes, very much. Absolutely. So whoever wants basically any kind अगर of, आप लोगों को अगर आपको शांतनु से बात करनी है, 1-1 मत करना, प्लीज फॉर्म अ ग्रुप एंड देन हैव अ जूम कॉल विद हिम. So I'm sure he'll be able to help you out with the Zoom call and a group. Okay, so that will really work right away, sir. Yes. So can we all एक second रुको जरा. Yes. So can we all unmute and once thanks Shantanu for coming and Thank you. Thank you. Thank you so much, Shantanu. Thank you. Thank you. So much, Santanu. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I hope all of you, Thank I hope all of you come out of the gladiator ring you very as much. soon as possible. We will definitely come out of this. Done. Pakka. I am sure about it. Sir है तो सब कुछ मुमकिन है. Inspired of your marvelous journey. Thank you, sir. Hello. चलो, great. very nice. Very nice. Thank you so much, Shantanu. Thanks a lot for being with us. Thank you so much for working on that and presenting all of this to all of us.